Students, welcome back to our online class. I am back with your new video, students. So students, in the previous video I have completed the first part of the chapter 13, India, location, geological and physiography, right? So in this video we would like to talk about the India. So let's begin, student. We won't waste our time. So let's see. The next topic is all about neighbors of India. It's all about neighbors of India. So let's talk about the neighboring countries of India. India has a common land boundary with Pakistan and Afghanistan in northwest, with China, Nepal, Bhutan in northeast, and with Myanmar and Bangladesh in the east. So students, India is having a common land boundary with Pakistan, Afghanistan in northwest side, means from the west side, you can say northwest side, and with China, students, and also Nepal, and with them Bhutan in the northeast side, with Myanmar and Bangladesh in the east. मतलब ईस्ट तरफ से म्यांमार और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान होते हैं, और वेस्ट तरफ से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना के साथ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है स्टूडेंट्स. तो मैं आपको अभी ये दिखाना चाहती हूँ मैप, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा. सी हेयर इज़ द पाकिस्तान, हेयर इज़ द अफ़गानिस्तान, राइट. और ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये गुजरात, राजस्थान, ऑल दिस पंजाब बॉर्डर, दिस इज़ अटैच टू द पाकिस्तान. आप लोग को पता ही है कि पाकिस्तान पहले इंडिया में ही था. Then this one have been divided. India was divided between two halves, India and Pakistan. So later on, over here is China. China and Tibet is including. पहले टिबेट एक अलग राज्य, एक कंट्री था, बट चाइना ने वॉर छेड़ लिया था टिबेट के साथ, तो टिबेट अब चाइना के कब्जे में है स्टूडेंट्स. सो चाइना एंड टिबेट इज़ ऑल अलोन. सो तो ये रहा नेपाल. आप देख सकते हो नेपाल, ये एरिया पूरा नेपाल का है. एंड ओवर हेयर इज़ भूटान. तो ये जो ईस्ट साइड है, यहाँ पे कौन है? नेपाल, भूटान, नॉर्थ ईस्ट साइड, राइट. एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार ऑल्सो. म्यांमार, ये रहा म्यांमार. ओके. सो म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, these all are in the east side. And the west side is Afghanistan, Pakistan, including the China also, students. Okay, and this whole is our country. So आपको पता चल गया हमारे कितने नेबरिंग कंट्रीज है. काउंट आउट. ओके, हमारे साथ काउंट करो आप. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश. ओके, सो वी गॉट seven neighboring countries are there. Okay students, so मैं आपको ये एक बार दिखा दूँ. ये होल मैप है जो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है. सो स्टूडेंट्स, यू हैव योर टेक्स्ट बुक, सो यू शुड हैव टू वॉच दिस पेज. ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपरली. देयर इज़ म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, and this one is China, Tibet. Okay students, so now we will start our the neighboring countries part, students. So let's see that one. So let's see. In the south तरफ में हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन है? श्रीलंका एंड मालदीव्स आर मरीन टाइम नेबर्स. मतलब these are the countries having a ocean boundaries. India and Sri Lanka are separated by Pok Strait and Gulf of Mannar. Lakshadweep Islands are located in the Arabian Sea, while Andaman Nicobar Islands are located in the Bay of Bengal. Okay students, understood? This is all about, we were talking about the neighboring countries. Now we will see, like to know, Indira Point, which was the southernmost point of India, was submerged in 2004 due to tsunami. With this, few islands of Andaman Nicobar were also submerged into the ocean. So students, जब सुनामी आई थी
तब बहुत सारे पार्ट्स, इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट्स सुनामी में बह गए थे। उनमें से बहुत सारे आइलैंड्स जो अंडमान निकोबार थे वो भी ओशन में डूब गए, ओशन में सबमर्ज्ड हो गए स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल सी द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सो लेट्स सी दैट वन। The current physiography of India is the result of tectonic and crystal movements of the earth. Both constructive as well as destructive effects of these movements can be seen. So students, there are current physiography लैंड के बहुत सारे फिजियोग्राफिक लैंड्स है जिसके रिजल्ट में टेक्टोनिक और क्रिस्टल मूवमेंट्स, मतलब हमारे अर्थ में टेक्टोनिक और क्रिस्टल मूवमेंट्स होते रहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल यू कैन से अर्थक्वेक की तरह नहीं, पर थोड़ी हलचल होती रहती है हमारे अर्थ में। तो वो जो होता है कंस्ट्रक्टिव, उसको डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स के बारे में बोला जाता है। जो मूवमेंट्स होते हैं, वो जो मूवमेंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स देखे जाते हैं। तो हम लोग उसके बारे में अब बात करेंगे। द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। The crust of the earth floats over the semi-liquid rocks of the asthenosphere. Heat is generated due to the radioactive process in the interior of the earth. It tends to reach the surface of the earth by generating conventional currents. These upward currents break the upper layers into the large pieces, which are known as lithospheric plates or tectonic plates. So students, geological structure is all about the interior part of the earth. जो अंदरी भाग होता है अर्थ का उसके बारे में है, and that is very much interesting because the crust of the earth, जो हमारे crust है, ऊपरली भाग है, वो फ्लोट करता है सेमी लिक्विड रॉक से। मतलब जो हमारे अंदर की पार्ट है वो एक रॉक के थ्रू सेमी लिक्विड पार्ट में, लोग हमें पता ही है कि हमारे अर्थ के अंदर और भी पानी छुपा हुआ है, राइट स्टूडेंट्स। तो वो जो रॉक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर रॉक्स बोला जाता है, जिसके क्या होता है, जो अंदरी भाग होता है अर्थ का वो हीट के थ्रू रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो जाता है, हीट के थ्रू रेडियो एक्टिव प्रोसेस में आ जाता है स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होगा, इट टेंड्स टू रिच द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो तो बहुत अंदर है, राइट। तो ऊपर आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा कॉन्वेंशनल करंट की ज़रूरत होती है, मतलब वो पूरी ऊपर भाग नहीं आ सकता, इसके लिए उसके एक प्रोसेस होता है जिसको कॉन्वेंशनल करंट्स हम लोग बोलते हैं, कि उसके थ्रू फिर वो अपवर्ड ब्रेक, मतलब ऊपरी भाग में आता है और ऊपर के जितने भी अपर लेयर्स है वो बहुत बड़े लार्ज पीसेस में चेंज हो जाते हैं। तो वो जो चेंज हो जाते हैं लास्ट पीसेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं हम लोग, और टेक्टोनिक प्लेट्स भी हम लोग उसको बोलते हैं। सो वो जो प्लेट्स होते हैं ऊपर आके लार्ज शेप में हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स बोला जाता है। ओके, देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, ऐसे 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। दीज आर पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, रशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अंटार्कटिक प्लेट। ये 7 प्लेट्स हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स को बोला जाता है स्टूडेंट्स, जिसके बारे में हम लोग ने बात किया, लार्ज लेयर्स जो ब्रेक हो जाते हैं अपर पोर्शंस में आके, वो है। At some places, these plates are drifting away from each other, which are known as divergent plates. तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक बेस होता है ड्रिफ्टिंग का, तो वो जो बेस के साथ होते हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट्स उसको बोलते हैं। आप देख सकते हो इस पिक्चर में स्टूडेंट्स, सी दिस वन इज़ द डाइवर्जेंट प्लेट्स, आप देख लो, ये डाइवर्जेंट प्लेट्स है। और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री और उसके ऊपर है कन्वर्जेंट प्लेट।
तो ये सारे प्लेट्स है जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में हमारे यहाँ पे काम आता है स्टूडेंट्स, ओके, जो हमारे अर्थ के अंदर में ऑलरेडी है. At some places, these plates come closer to each other, which are known as convergent plates. तो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ये दोनों प्लेट्स, ये टेक्टोनिक प्लेट्स और ये डाइवर्जेंट प्लेट्स, ये सारे साथ में आ जाते हैं, मतलब क्लोज आ जाते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट प्लेट्स. ये वाला जो हमने बात की थी, ये वाली बात है स्टूडेंट्स. ड्यू टू डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस प्रोसेसेस, fold and fault take place. Due to the movements of these plates over millions of years, shapes of landforms as well as their locations have changed. So students, ये जो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस प्रोसेस है वो बहुत टाइम लगता है और इसमें कोई फॉल्ट्स भी होते हैं. ये आप सोच लो, बहुत मिलियन और मिलियन ईयर्स के बाद तब जाके लैंड फॉर्म होता है, उसके शेप्स बनते हैं और तब जाके उसके लोकेशंस भी कभी कभी चेंज होते हैं स्टूडेंट्स. The process of divergence is responsible for all the tectonic and volcanic activities on the earth. Wherever these drifting plates have collided with one another, it has resulted into mountain building process. Wherever these plates drift away, fissures are created within landforms and oceans. The continents situated along these fissures are drifting apart continuously. Such plates are called divergent plates. So students, in this line I wanted to tell you that the process of divergence is very much responsible to the tectonic plates and the volcanic activities, the volcano eruptions of the earth. It's all dependent to these two facts. And then wherever these drifting plates collided, means ये सारे drifting plates साथ में हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तब वो एक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होता है, मतलब तब जाके वो एक माउंटेन बनता है स्टूडेंट्स. फिर जाके ये जो प्लेट्स होते हैं वो अलग होके अलग अलग लैंडफॉर्म्स में क्रिएट हो जाते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म, अलग अलग पार्ट बन जाता है और ओशंस में कोई समा भी जाता है. इट्स इंक्लूडेड विद द ओशंस ऑल्सो. So the continents situated, the continents like Asia, Africa, all these continents have been situated like this one only. और ये हमेशा ऐसे continuously चलता ही रहता है students. Like that way, such plates are called divergent plates. So that's why such plates are called divergent plates students. Okay, ये plates, मतलब पहले ऐसा होता है, फिर ऐसे होता है और फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये इस तरह से बाउंड्रीज हमारे लैंड का बन जाता है स्टूडेंट्स. पहले बहुत दूर होते हैं, देन वो नज़दीक आते हैं, नज़दीक आके फिर ये स्लेशन हो जाता है, इसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो जाता है स्टूडेंट्स. आप देख सकते हो इस पिक्चर में इजीली वर्ल्ड मेजर प्लेट्स, ये सारे वर्ल्ड मेजर प्लेट्स में आते हैं स्टूडेंट्स. See, here is North American plate, South American plate, Pacific plate, Russian plate, African plate, Russian's plate, Pacific Ocean plate, Indo-Australian plate, Antarctic plate, means these all are included over here, all the plates that we were talking about. Okay students, so now let's see the last page of this chapter. Then our chapter would be completed students. Let's see it. India was a part of a very vast and an ancient landmass known as the Gondwana land. This large landmass consisted of the present South America, Africa, Australia and Antarctica. Over a period, the Indo-Australian plate started drifting gradually towards north. It is so believed that this plate collided with the large Russian plate before after 5 crore years. Due to the collision between Indo-Australian plate and the Russian plate,
द हिमालयन माउंटेन सिस्टम इमर्ज्ड आउट ऑफ थियास सी। सो स्टूडेंट्स, इसमें ये बोल रहे हैं कि इंडिया का बहुत ज़्यादा एंशियंट मतलब बहुत पुराना लैंड मास है, बहुत पुराना हमारा इंडिया है, और उसको पहले क्या बोला जाता था? गोंडवाना बोला जाता था। द लार्ज लैंड मास, जो ये लार्ज लैंड मास है पूरे प्रेजेंट अभी के टाइम में जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में है, वो उस टाइम में ओवर अ पीरियड मतलब बहुत टाइम बाद ये सारे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में नॉर्थ साइड में साथ हो गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये प्लेट कोलाइडेड हो जाता है 5 करोड़ ईयर्स के बाद। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और लार्ज रशियन प्लेट बिफोर आफ्टर, मतलब ये दोनों जब बने थे इसके 5 करोड़ साल पहले ये इंडिया था, they were at that time, and it is believed that the collision between Indo-Australian plate and Russian plate, the Himalayan mountain system emerged out Thracia Sea। मतलब ऐसा हो सकता है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और रशियन प्लेट दोनों कोलैब हो जाए, दोनों मिल जाए और वो एक हिमालयन माउंटेन में सिचुएटेड हो जाए, एक हिमालयन माउंटेन बन जाए जो कहाँ पे होगा? थ्रेसिया सी के वहाँ पे होगा, थ्रेसिया सी स्टूडेंट्स। ओके, अ लार्ज वैली वॉज फॉर्म्ड टू द साउथ ऑफ द हिमालयन सिस्टम wherein alluvial sediments were deposited by the rivers flowing from north and south of it. Thus the Ganga plain between Himalayas and the southern peninsula was formed. A huge volcanic eruption took place in the northwest of the peninsular plateau, as a result of which the western portion of the plateau was disintegrated and was submerged. This led to the formation of Arabian Sea. Due to this submergence, the Western Ghats became more distant. So students, a lot of large valleys formed. हिमालयन के वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वैली बन गए थे और बहुत सारे सेडिमेंट्स रॉक्स भी बन चुके थे, जो रिवर्स जहाँ पे फ्लो करती है नॉर्थ एंड साउथ साइड में, वहाँ पे वो सारे फ्लो करने लग गए थे। जैसे कि हमारे पास है गंगा प्लेन जो हिमालयस के वहाँ पे है, गंगा रिवर आपको सबको पता ही है, तो उसके जो प्लेन्स है वो कहाँ पे है? हिमालयस में है, राइट। तो उस टाइम में हिमालयस और सदर्न पेनिनसुला मतलब साउथ साइड के जो पेनिनसुला है वो बन गए थे, और उस टाइम में अ लार्ज वॉल्केनिक इरप्शन, एक बहुत ह्यूज बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था नॉर्थ वेस्ट साइड के पेनिनसुला प्लेटू में। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो वेस्ट साइड का पोर्शन था प्लेटू का वो पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया, मतलब पूरा का पूरा जुड़ गया। इसलिए उसके बाद अरेबियन सी का फॉर्मेशन बना, तब जाके अरेबियन सी बना, एंड फिर जाके वेस्टर्न घाट एक डिस्टेंट मतलब एक लेवल में आके वेस्टर्न घाट वो प्रॉपर एक घाट बन चुका है जो गंगा प्लेन्स के वहाँ पे है। ओके, नाउ सी दिस वन। Thus, a large diversity is seen in the Indian subcontinent. Lofty mountain ranges are seen in the north. Many plateaus, summits and passes are seen within them. Ganga, Yamuna and Brahmaputra rivers flow in the northern plains. Their alluvial deposits have formed this plain. Two edges in the form of ghats are two sides of the plateau, and coastal plains are situated on eastern and western margins. Thus, India holds a diversified physiography. So students, हमारा जो ये इंडिया है ये बहुत बड़ा लार्ज डाइवर्सिटी में दिखाया जाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, बहुत सारे रेंजेस है, मतलब माउंटेन रेंजेस मतलब एक के बाद माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, बहुत सारे प्लेटूज़ है जहाँ पे एक दूसरे के वहाँ पे पास होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारे रिवर्स नॉर्थ प्लेन्स में फ्लो करते हैं, राइट। और इसके साथ साथ एलुवियल फॉइल्स, एलुवियल डिपॉजिट्स, एलुवियल सॉइल्स जो होते हैं वो भी
प्लेन्स के साथ सबमर्ज हो जाते हैं। इसके लिए अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो दो एजेस थे, मतलब दो अलग अलग भाग थे घाट के, वो सेम अलग अलग साइड बन गए प्लेटू और कोस्टल प्लेन्स के। मतलब एक साइड प्लेटू की और एक साइड कोस्टल प्लेन्स की, एक साइड ईस्टर्न साइड में और एक साइड वेस्टर्न साइड में। तो इस तरह से हमारा इंडिया फॉर्मेशन बना है। With the help of the mountain ranges, a beautiful lofty plateaus, all this, and this is called and India holds a diversified physiography. And यही एक रीज़न है कि इंडिया डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी होल्ड करता है। मतलब बहुत अच्छे लोकेशन इंडिया का है जिसके थ्रू हम लोग 3 सीज़ के अरेंज में है। हमारे पास थ्री सी लेज है। एरिया इन द लैंड एरिया ऑफ टाइम वी आर इन द 7th पोजीशन, मीन्स वी आर इन अ वेरी गुड प्रॉपर country's position over here. Okay students, so students, our subject chapter 13 India is now completed. We would like to your homework is that you have to solve all the question answers over here by your own self, because I will help you over there. These all, yeah, I will help you with the help of the map. Definitely I will do that. But students, you have to write the question answers by your own self. Okay students, so now my work is completed. Now it's your turn. You have to do your homework. So till there, I will see you in the next video with upcoming new chapter students. Okay, so till there, wait for me, because I will definitely come with the new video. So till there, bye bye and have a nice day students. Stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to pack up students. Bye bye and have a nice day.